professor in sociology at Assam University, also worked as lecturer in Barkhatullah University of Bhopal. Uh, to his credit, there are some important positions as a research evaluator in the research project of communication and national integration conducted by Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. He also worked as a research assistant in UNESCO's project of articulation between rural and urban areas in Meerut region of India. Uh, his specific experience are there in the fields of some very elaborate organizations such as the Indian Sociological Society. He is the national convener of the Research Committee 14 on Culture and Communication of Indian Sociological Society. He is also an international correspondent of Indian Sociological Society's Committee on Sociology of Communication, Knowledge and Culture. He is also the convener of Northeastern Sociological Society, Silchar. With this, to his credit, there are 3 books and around 38 research papers. He has also guided around 13 PhDs till now, and there are n numbers of PhDs and postdocs under his supervision right now. He has also been presenting papers, being onto the chairs of different seminars, and also conducted different seminars and conferences and workshops, which are national and international in nature. Today, Sir will be delivering his lecture on the topic globalization and communication issues. And Sir will be guiding us into the methodological issues of globalization and communication issues. We welcome Sir, as globalization is a very important aspect, and communication is also very important for us as teachers and as professors. So we'll be very keen to listen to him, and we welcome him on behalf of all the participants and all the colleagues. Sir, the dice is all yours. Over to you. Thank you, Malishri Shukla, for introducing me. Just a minute. There are some problem in connecting with the laptop, but now I am connecting through my phone. Am I audible? Hello? Yeah. Am I audible? Hello? Hello? हाँ, आपकी सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? नहीं, आपकी आवाज़ तो आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? I think it was muted. Now I think you are getting my voice also. Okay. Thank you for introducing me to the participants of this important refresher course on digital computerization. Topic of my presentation is globalization and communication research, conceptual and methodological issues. So my presentation will be in 2 parts. In the first part, I will deal with the notion of globalization and the issues, conceptual issues and methodological issues related to the globalization.
In my second part of my presentation, I will focus on communication research and mainly on mass communication research and the paradigm shift which has taken place in last 3 decades, and what kind of conceptual and methodological issues have arisen, and how globalization and communication research are interrelated, that I will discuss in the last. So let me begin with globalization and communication research. First, I will deal with globalization. As we are aware that societies throughout the world are now passing through the process of profound and rapid change. Very rapid and profound change is taking place throughout the world in last few decades, and this change is closely related with the process of globalization. In last 1 decade, this process is taking place in most of the countries of the world, and we know that globalization refers to the increasing interdependence of the people across the world, and it refers to the increasing impact of living and working in a single global marketplace. But more fundamentally, it refers to a basic shift in the institution of our lives. So it has given rise to a debate among the social scientists on the one hand and the policy makers on the other to assess the impact of the processes associated with this wider phenomenon on the social and cultural institutions of the society, not only in the developed societies but also in academic and political forums of the developing societies, particularly those who have adopted policy of privatization and liberalization in recent past. India is also one of those countries who adopted this policy of liberalization, privatization and globalization in 1993. So we have now almost 3 decades of the globalization experience. But there are a lot of confusion about the concept of globalization, and different meanings and different definitions which confuse more rather than clarify the term. So I will very briefly discuss the concept of globalization. At the most general level, globalization refers to a process of change. So अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज. वैश्वीकरण क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है विच अफेक्ट्स ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन ए वैरायटी ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, मीडिया, कल्चर एंड द एनवायरनमेंट. और इसका प्रभाव हमें विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, अर्थव्यवस्था में, तकनीकी में, राजनीति में, मीडिया में, संस्कृति में, पर्यावरण में, सब जगह हमको इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है. अकॉर्डिंग टू हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन में बी थॉट इनिशियली एज widening, deepening and speeding up of the worldwide interconnectedness in all aspects of the contemporary social life, from cultural to criminal, the financial to the spiritual. अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसको हम देख सकते हैं कि जो एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसकी तीव्रता भी बढ़ रही है, और ये बहुत गहराई से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित कर रही है. और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं देख सकते, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो अपराध की दुनिया हो. सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन
नज़र आता है. There is a general agreement among the scholars on the interconnected dimension of the process of globalization. So there is no doubt that most of the scholars are agreed that it is related to worldwide interconnectedness. But beyond this, they differ from each other on the dimensions of globalization. And broadly, they can be divided into three categories: the hyper-globalizers, skeptics and transformists. हाइपर-ग्लोबलाइजर्स का मतलब है अतिशयवादी, जो बड़ा चढ़ा के चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं. The hyper-globalizers are those who believe that globalization represents a new epoch in human history. उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन एक नए युग का प्रारंभ कर रहा है मानव इतिहास में, और सभी प्रकार के जो संबंध हैं वो ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेट हो रहे हैं. दे आर ट्रांसेंडिंग द नेशन स्टेट्स, और नेशन स्टेट्स जो राष्ट्र राज्य जो एक बहुत मजबूत इकाई रहे हैं आधुनिक राष्ट्रों की, उसको ट्रांसेंड कर रहा है, उसको समाप्त कर रहा है, और एंड मेकिंग इट इंक्रीजिंग इरेलीवेंट. और ये धीरे धीरे राष्ट्र राज्य जो है कि अवधारणा जो है वो इरेलीवेंट, वो महत्वहीन होती जा रही है. एवर इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल, कमोडिटीज, पीपल एंड आइडियाज. चार चीज़ों का ट्रांसनेशनल फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ा है. ट्रांसनेशनल मतलब राष्ट्र से बियॉन्ड द नेशन. क्या चार चीज़ें हैं जिनका फ्लो बढ़ा है? एक है लोगों का आवागमन. आप देखते हैं कि लोग क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ पीपल. द आइडियाज़ का फ्लोटिंग बहुत ज़बरदस्त है. आज कोई भी आइडिया आप इंटरनेट पे डालिए, तुरंत वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा. आज आप उस किसी भी चीज़ को, किसी विचार को, किसी आइडिया को आप कन्फाइंड करके एक बाउंड्री में या नेशन की बाउंड्री में या किसी कम्युनिटी की बाउंड्री में नहीं रख सकते, वो कहीं भी फैल सकता है. तीसरा है कैपिटल भी फ्लूइड है, ये भी मूवेबल है. पहले आप देखते हैं कि अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को देखें तो वो नेशनल लेवल पे स्टेबल था. पूंजी थी, एक राष्ट्र के अंदर ही रहती थी, उससे बाहर नहीं जाती थी. लेकिन आज पूंजी क्या है, वो भी एक ग्लोबल है, और एक जगह से दूसरी जगह पूंजी का प्रवाह देखने को मिलता है. और चौथी चीज़ है कमोडिटीज़. जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, आज वस्तुएं भी, उनका भी क्रॉस बॉर्डर फ्लो हम बहुत तेज़ी से होते हुए देख रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पिछले कुछ वर्षों में. और ये जो एक नया युग जिसकी संज्ञा हाइपर ग्लोबलाइजर्स देते हैं, उनका कहना है कि ये इसकी एक पहचान है या इसकी एक डिफाइनिंग फैक्टर है. दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: पॉजिटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स एंड निगेटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स. अब ये जो अतिशयवादी हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, इनमें दो तरह के विद्वान हैं. एक तो वो जो इसके बारे में पॉजिटिव विचार रखते हैं, दूसरे वो जो इसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं. उनके लिए इससे ख़राब कोई चीज़ नहीं है. ग्लोबलाइजेशन सबसे ख़राब चीज़ है दुनिया के लिए, और पॉजिटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है. ये सारी समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है. जो पॉजिटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स है, उनका ये कहना है कि ओपन ग्लोबल मार्केट्स, दे आर एडवोकेटिंग दैट ग्लोबल मार्केट शुड बी ओपन. आप मार्केट को मत क्लोज कीजिए, ओपन कर दीजिए. एंड दे बिलीव दैट दीज विल गारंटी ऑप्टिमल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विल इन लॉन्ग रन ब्रिंग अबाउट इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन. और उनका ये कहना है कि जो मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी, लिबरल ओपन मार्केट इकोनॉमी जब एंटर करेगी, इससे हाई लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सभी जगह, एंड एज ए रिज़ल्ट सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन.
द निगेटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स, अब निगेटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स क्या कहते हैं, वो दे आर वेरी क्रिटिकल एंड दे आर मेनली क्रिटिकल थ्योरिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। आप लोगों ने इन दोनों का, क्रिटिकल थ्योरिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर, इनके बारे में जानते होंगे, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली दोनों ही मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं। नियो मार्क्सिस्ट इज वन ब्रांच, those who believe that Marx theory can be rectified, and critical theorists are those who think that there is a need to reread Marx and to critically examine. So they, both of them are different from orthodox Marxists, and they focused upon negative impacts of globalization in a critical manner and reject the notion of globalization in its totality. जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं और नियो मार्क्सिस्ट हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। तो एक और पॉजिटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स हैं जो इसको बहुत रामबाण औषधि की तरह बताते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेगेटिव हाइपर ग्लोबलाइजर्स हैं जो इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह के विद्वान हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। दूसरे तरह के विद्वान हैं वो स्केप्टिक्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जो संशयवादी हैं, जिनको संशय है इसके बारे में, एंड हु आल्सो फोकस ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड दे आर्ग्यू दैट देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। उनका मानना है कि ये कुछ नहीं है, बस एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है और ऐसा इसमें कुछ भी नया नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के से पूर्व भी यूरोप में या वर्ल्ड लेवल पे हम इस तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देख सकते हैं, जो कि कॉलोनियल वर्ल्ड में इस तरह का इंटीग्रेशन पहले भी था। एंड दे जनरली प्रीफर द टर्म इंटरनेशनलाइजेशन टू ग्लोबलाइजेशन। और वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ये भ्रामक टर्म है और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। एंड दे आल्सो आर्ग्यू द रोल ऑफ नेशन स्टेट रिमेन एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। तो हाइपर ग्लोबलाइजर्स की तुलना में उनका ये मानना है कि नेशन स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और नेशन स्टेट आज भी उतनी पावरफुल है जितनी कि वो पहले थी। तीसरी कैटेगरी के जो विद्वान हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स हैं, जिनको आप कहेंगे रूपांतरणवादी हिंदी में। ये दोनों से अलग हैं। ये ना बहुत बड़ा चढ़ा के लोग चीज़ों को मान रहे हैं, ना बहुत वो निगेटिवली देख रहे हैं, ना नॉट इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, ना ही वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है या सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन है। इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन इज ए सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मेजर इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इनका ये मानना है कि आज जो परिवर्तन हो रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इन सब के पीछे जो सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स है, जो मुख्य इसकी वाहक शक्ति है, वो ग्लोबलाइजेशन ही है। एंड दे आर अफेक्टिंग वर्चुअली ऑल द वर्ल्ड्स पीपल टुडे। ये वर्चुअली सभी लोगों को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो उससे डायरेक्टली जुड़े हैं या नहीं है। जो नहीं डायरेक्टली नहीं जुड़ा है उसको वर्चुअली अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कहीं क्राइसिस हो रहा है गल्फ़ कंट्री में और इंडिया में हम लोगों का कोई डायरेक्ट उनकी लड़ाई से कोई संबंध नहीं है, उनमें आपस में अगर लड़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ जो ऑयल प्रोडक्ट की जो सप्लाई है या क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो सब पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगी, इंक्लूडिंग इंडिया। चाहे हम लोग का डायरेक्टली उससे संबंध है, तो वर्चुअली वी आर अफेक्टेड। तो ग्लोबलाइजेशन वर्चुअली वर्ल्ड के सभी लोगों को आज प्रभावित कर रहा है। एंड ग्लोबलाइजेशन इज सीन एज द ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लोजली इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस ऑफ चेंज इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नेंस, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन।
आज जितने भी परिवर्तन की प्रक्रिया है वो आपस में इंटरलिंक्ड है और वो एक दूसरे को, चाहे वो टेक्नोलॉजी से आने वाले परिवर्तन हो, चाहे वो आर्थिक रूप से आने वाले परिवर्तन हो, या वो गवर्नेंस के अंदर भी जो परिवर्तन आ रहे हैं, या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड डेवलपमेंट इन ऑल दीज एरियाज आर म्यूचुअल रीइंफोर्सिंग और रेफ्लेक्सिव. तो ग्लोबलाइजेशन को एक रेफ्लेक्सिव फिनोमिनन के रूप में देखते हैं और उनका ये मानना है कि ये रेफ्लेक्सिविटी जो है, रेफ्लेक्सिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई आर्थिक विकास किसी देश का हुआ है तो वो आर्थिक विकास अगर मान लीजिए एजुकेशन का लेवल बढ़ने से हुआ है तो बदले में वो एजुकेशन को और बढ़ावा देगा. तो जो अगर हम कहें कि एजुकेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण है, तो बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट का कारण भी बन जाता है. तो इस तरह का ये टू वे प्रोसेस जो है, जिसमें कॉज बाद में इफ़ेक्ट हो जाता है और इफ़ेक्ट कॉज बन जाता है, तो ये इसमें व्हाट इज़ द कॉज एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, ये कहना बहुत मुश्किल है और इसको हम रेफ्लेक्सिविटी कहते हैं, या इसको हम म्यूचुअली रीएनफोर्सिंग, एक दूसरे को मजबूत करना. जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, वो इक्वल लेवल पे एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वो हम कहेंगे रेफ्लेक्सिविटी है, म्यूचुअल रीइंफोर्सिंग उनका बिहेवियर है. ये वन वे नहीं है, ये टू वे है. सो दैट नो क्लियर डिस्टिंक्शन कैन बी ड्रॉन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. तो अगर ये रेफ्लेक्सिव है और ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच हम अंतर नहीं कर सकते, तो इसके बहुत भारी मैथडोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस सोशियोलॉजी में हैं, जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा. ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट रिगार्ड contemporary patterns of cross-border flows, that is of trade, investment, migrants, cultural artifacts, environmental factors, etc., as without historical precedent. और उनका ये मानना है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस प्रकार के जो चेंजेस अभी दिखाई दे रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ऐसे कभी परिवर्तन देखने में नहीं आए. हालांकि कुछ लोगों का, पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि इसी तरह के परिवर्तन यूरोप में उस टाइम देखे गए थे जब फ्यूडल से मॉडर्न सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने वहाँ जन्म लिया था. ये उसी तरह के अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. सच फ्लोज इंटीग्रेट वर्चुअली ऑल कंट्रीज इनटू ए लार्जर ग्लोबल सिस्टम एंड दस ब्रिंग अबाउट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एट ऑल लेवल. और इस तरह के जो क्रॉस बॉर्डर फ्लोज हम देख रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे वो ट्रेड के क्षेत्र में हो, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हो, माइग्रेशन हो, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हो, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंटल एजिटेशंस या मूवमेंट्स हैं, ये सब इंटीग्रेट कर रहे हैं सभी देशों को एक बड़ी विश्व स्तरीय व्यवस्था के अंदर, या एक वैश्वीकृत विश्व या व्यवस्था का जन्म हो रहा है और जो सभी लेवल पर सामाजिक रूपांतरण कर रही है. Thus, the process of globalization is not confined to economic and political concern of these societies. Its impact can also be observed in the field of mass media communication and other social and cultural institutions of the society. So in this way we see that globalization is not just an economic phenomenon, it is a multidimensional and a very complex phenomenon. With these remarks, now I will focus on theoretical implications of globalization in sociology. अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट की बात को सही मान लें, स्केप्टिक्स जो इसको मानते ही नहीं और जो
हाइपर ग्लोबलाइजेशन है जो इसको बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट का जो एनालिसिस है वो रियल है और वो ग्राउंड लेवल पर ठीक है। अगर हम इसको मान लें तो इसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल एंड मैथडोलॉजिकल लेवल पर हम देख सकते हैं। At theoretical level, globalization poses a challenge to all existing theories of social sciences in general and sociology in particular. And it is due to all-encompassing character of globalization which requires a macro-level analysis rather than micro-level analysis, which has become a routine approach in sociological research. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन थ्योरेटिकल लेवल पर इसका है कि ऑल एग्जिस्टिंग थियरीज ऑफ सोशल साइंसेस एंड पर्टिकुलरली इन सोशोलॉजिकल थियरीज, वो सभी आज उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़े चैलेंज है। और चैलेंज ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए माइक्रो लेवल प्रोसेस, इट इज़ ए मैक्रो लेवल प्रोसेस, एंड बिकॉज इट इज़ ऑल एनकम्पासिंग करेक्टर। इसमें सारे ही क्षेत्र आ रहे हैं, कल्चर भी आ रही है, इसमें जो गवर्नेंस भी आ रही है, इसमें इकोनॉमी भी आ रही है, इसमें एनवायरनमेंट भी आ रहा है, और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन भी आ रहा है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, एंड इट रिक्वायर्स मैक्रो लेवल एनालिसिस। इसको समझने के लिए हमारा एनालिसिस मैक्रो लेवल का हो एंड rather than micro level analysis, and which has become a routine approach in sociological research. अगर आप सोशोलॉजी में देखें तो क्लासिकल थिंकर्स के जो वर्क थे ऑल एनकम्पासिंग टाइप ऑफ थियराइजेशन था उनका। अगर आप दुर्खाइम को देखें, वेबर को देखें, मार्क्स को देखें या पार्सल्स को ही देखें, इन्होंने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें अपनी कोई थ्योरी ना दी हो। चाहे वो आर्थिक की बात करेंगे उस पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो उसके बारे में भी किया है, अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में कहेंगे तो पावर स्ट्रक्चर के बारे में भी कहा है, अगर आप स्टेटस प्रेस्टेज के बारे में कहेंगे उसके बारे में भी उन्होंने कहा है, रिलीजन के बारे में उनके विचार हैं, मैथडोलॉजी के बारे में उनके विचार हैं। तो ये जो एक सोसाइटल लेवल का थिंकिंग था, एक ब्रॉड थिंकिंग जो उनके एनालिसिस में दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ये सोशोलॉजी में हम लोग माइक्रो लेवल की स्टडीज़ पर आ गए। आज हम लोग जो रिसर्च करते हैं, चाहे वो पीएचडी की हो, हम एक छोटा सा एक गांव ले लिया, एक छोटा सा हमने कहा, एक छोटा सा हमने भाई 200 का सैंपल ले लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी मैक्रो लेवल जनरलाइजेशन और एनी जनरलाइजेशन, universal generalization, and globalization is a universal phenomenon. So we cannot have universal theorization and to understand or to formulate a theory of globalization. So this is one very important challenge, because we are not able today we are not able to have that kind of research. There are two important theoretical constructs emerged in last 5 decades. These are postmodernism and globalization. Both the constructs claimed that the project of modernity or institutions of modernity are transforming and a new era has been arrived, and they called the new form of society as postmodern society or globalized society. However, these claims of postmodernist and hyperglobalizers have been challenged by a number of sociologists, particularly by Anthony Giddens and Jürgen Habermas, and they argued that the project of modernity is not over, but the modernity is transforming itself into high modernity. The argument which has been put forward by Anthony Giddens, or it is
unfinished project, as discussed by Habermas. The similar formulations are forwarded by Ulrich Beck in his Risk Society, and he see globalization as reflexive modernization. Manuel Castells, who formulated the notion of informational society and network society. Zygmunt Bauman, who talks of liquid modernity and liquidity not only in one sphere, in every sphere of life. He said that now solid modernity is transformed into liquid modernity. And thus, theoretically, today we have a number of societal types as mentioned above. The above scholars, although rejected postmodernism, but accepted that the modern society has now been transforming and its institutions are transforming. Thus, the notion of modernity today is in debate. The existing perspectives, structural functional perspective, Marxian perspective, symbolic interactionist perspective, phenomenology, ethnomethodology are not capable to capture the phenomenon of globalization. The debate on postmodernism is also subsumed in the globalization debate. Thus, theoretically, we have two problematic. First problematic is related to modernity or modern society, whether it is there or it is ended. This is one very important issue uh, about modernity, and debate is not yet concluded. Some people say modernity is over, others say no, it is unfinished project, it is not over, it is transforming itself into a higher state, that is high modernity. So this is one important theoretical problem which emerged as a consequence of globalization. Second problematic is regarding form or types of contemporary society. What type of society is coming if modernity is ended, or if it is transforming into a new form? What is that? And whether it is a highly modern society or consumer society, or it is a risk society or an informational society or a network society, and so on. So there are so many types of societies are suggested, so it is not clear what kind of society is emerging out of globalization. And third problematic is regarding the phenomenon under study. There are different conceptualizations of the same phenomenon presented by different sociologists.